बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज जो है सूरतुन निसा आयत नंबर 137 टू 147 लेंगे और पाँचवें सिपारे का हमारा जो है वो आखिरी रुकू है। अल्लाह के फजल करम से और सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी और उसके एहसान से हम जो है वो पाँचवें सिपारे के इख्तिताम पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हयात रखे और बेहतरीन सेहत अता करे मुझे और आपको, ताकि हम इस काम को जो है वो आखिरी सिपारे तक ले जाएं, इंशाअल्लाह कुरान को मुकम्मल करें इंशाअल्लाह। चलिए आते सुनते हैं इंशाअल्लाह सूरतुन निसा आयत नंबर 137 टू 147। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र किया, नाफरमानी की, फिर ईमानदार बन गए, फिर ईमान ले आए, फिर नाफरमानी की, फिर बढ़ते ही गए नाफरमानी में, कुफ्र में, नहीं है अल्लाह के वो मग़फ़िरत करे उनकी और ना ही वो हिदायत दे उन्हें सीधे रास्ते की। आयत नंबर 138। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। खबर दे दें, खुशखबरी दे दें ऐसे मुनाफिकों को कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आयत नंबर 139। अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तग़ून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। जो लोग बनाते हैं काफिरों को अपना औलिया, अपना दोस्त, ईमान वालों को छोड़कर, क्या वो तलाश करते हैं उनके पास इज़्ज़त? तो बेशक इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए है तमाम की तमाम। आयत नंबर 140। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। और बेशक उसने नाजिल किया तुम पर अल किताब में कि जब सुनो तुम अल्लाह की आयतें, इनकार किया जा रहा हो उसका और मौजू मजाक बनाया जा रहा हो उसका, यानी वो लोग उसका मजाक बना रहे हैं अल्लाह की आयतों का, तो ना तुम बैठना उनके साथ यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाएं किसी और बात में इसके अलावा, वरना बेशक तुम भी ऐसी सूरत में उन जैसे ही माने जाओगे।
بے شک اللہ جمع کرنے والے ہیں منافقین اور نافرمانوں یعنی کافروں کو جہنم میں اکٹھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 141 الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، پھر اگر حاصل ہو تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، وہ کہیں گے کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ اور اگر حاصل ہو کافروں کو کوئی حصہ یعنی فتح کا، تو وہ کہیں گے کافروں سے کیا نہیں ہم نے خبردار کیا تھا تمہیں اور ہم نے بچا لیا تھا تمہیں ایمان والوں سے؟ تو اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دیتا ہے اللہ کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ۔ آیت نمبر 142 ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور اللہ انہیں ان کے ہی دھوکے میں پڑے رہنے دیتا ہے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی کاہلی سے، دکھاوا کرتے لوگوں کے سامنے، اور نہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا مگر بہت کم۔ آیت نمبر 143 مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ ڈاما ڈول ہے اس حالت کے درمیان، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے گمراہی میں پڑے رہنے دے اللہ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 144 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء ایمان والوں کو چھوڑ کر یا ایمان والوں کے علاوہ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے تمہارے خلاف کھلی دلیل؟ آیت نمبر 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ بے شک منافقین درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ آیت نمبر 146 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ سدھر گئے،
नंबर 3, और मजबूती से थाम लिया अल्लाह के दीन को और खालिस कर लिया अपने दीन को अल्लाह के लिए, तो यही लोग हैं साथ ईमान वालों के, और ज़रूर देगा अल्लाह ईमान वालों को अज्र बड़ा। आयत नंबर 147, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा। क्यों दे अल्लाह तुम्हें अज़ाब की सज़ा अगर तुम शुक्र करते रहो और ईमानदार बने रहो, और अल्लाह ही तो है कदरदान और सब कुछ जानने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 137। आयत नंबर 137 से लेकर आगे जो है यानी 5वें सिपारे के जो इख्तिताम तक 147 तक तकरीबन एक ही टॉपिक चलेगा इंशाल्लाह, और वो टॉपिक है एक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो मुनाफिकत का कैरेक्टर। मुनाफिक कौन है, क्या उनकी और क्वालिटीज यहाँ बताई जा रही। सूरतुल बकरा के बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पढ़ने के बाद यानी ये बिल्कुल भी आप जज ना करें, या मैं कहूँ कि पढ़ने से पहले ही अपने माइंड को सेट करें, किसी को इस जगह मत रखे, अपने आप को सोचे कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ। देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए कि आयत नंबर 137 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। इन्नल लज़ीना आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादू कुफ्रन ला यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। बेशक ऐसे लोग जो ईमान लाते हैं फिर कुफ्र करते हैं, फिर ईमान लाते हैं फिर कुफ्र करते हैं, फिर ज्यादा हो जाते हैं कुफ्र में, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते, मगफिरत कर दे उनकी। नंबर 1 थिंग, अनदर इज वला लियहदियहुम सबीला, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हैं कि उनको राह भी नहीं दिखाएंगे, उनको हिदायत भी नहीं देंगे। देखिए जरा कैसा लग रहा है ना, कफरू फिर आमनु, आमनु कफरू, कफरू आमनु। ऐसा लग रहा है जैसे ईमान का बल्ब जो है वो कभी जलता है कभी फ्यूज होता है, कभी जलता है कभी फ्यूज होता है। और आपको पता है ये किस वजह से होता है? निफाक की वजह से। कभी दिल किया दीन पे अमल कर लिया, कभी दिल किया दीन को छोड़ दिया, इस तरीके से। क्योंकि शुरू में आपको बता दिया गया था कि मुनाफिक का सिफत इंसान जो होता है मुफाद पसंद होता है, जहां पर उसको अपना फायदा नजर आता है वो उस तरफ टर्न ऑफ हो जाता है। दुनिया दीन में भी रहता है तो उसमें दुनिया के ही फायदे तलाश करता है। कुछ फायदा हुआ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नुकसान हो गया नमाज छोड़ दिया, फायदा ही नहीं हुआ कुछ नमाज पढ़ने का, फायदा क्या नमाज पढ़ने का, क्यों पढ़ूं मैं, मुझे जरूरत क्या नमाज पढ़ने की। अस्तगफिरुल्लाह कि कुछ मुसलमान भी इस तरीके से जवाब देते हैं, क्या फायदा नमाज पढ़ के, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो देखिए कि कितनी बुरी बात है। नाउज़ुबिल्लाह, नमाज तो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, दीन का एक रुकन है। नाउज़ुबिल्लाह उसको जो है यानी कि फायदे और नुकसान के तौर पर इंसान उसको अपनाए तो फिर क्या बने इंसान का। और वो पढ़े या नहीं पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तो क्या करता है, पहले तो वो रहता है ईमान पर, चलो भाई दीन पर अमल कर लो कर लो कर लो, जरा सा कुछ नुकसान हुआ फिर कुफ्र में आ गया। अब देखिए यहाँ पर किसी काफिर की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी काफिर की तरफ इशारा किया जाता तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ जो है आमनु का इस्तेमाल ही नहीं करते अल्फाज। तो ईमान में रहते रहते कुफ्र की तरफ टर्न होने की जो क्वालिटी है वो मुनाफिकों के अंदर होती है। यहाँ तक कि वो इतना ईमान कुफ्र के बीच में ऐसा है ना अप डाउन होता है कि कुफ्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए जरा क्यों, क्योंकि देखिए कि मगफिरत का माफी का ताल्लुक जो है वो तौबा इस्तगफार से है।
ایسی کوالٹی کے لوگ کبھی بھی یعنی کہ توبہ استغفار کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے. دے تھنک کہ ہم کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے آپ میں ہم کچھ برا تھوڑی کر رہے ہیں. وہ سوچ ہوتی ہے ان کی اس طریقے سے. دعا کریے کہ آگے جو جو ایسی کوالٹیز آ رہی ہے ہمارے اندر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ختم کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے انشاءاللہ. چلیے پھر مزید 138 میں کیا بتایا گیا؟ 138 میں کیا بولا جا رہا ہے؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. چلیے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دو اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا یہاں کسی کافر کی بات نہیں چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ منافق اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ساری نماز باجماعت جو ہے یہ ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ساری نمازیں ادا کرتے تھے. سوچیے ذرا آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. بالکل بھی یعنی اچھا اب کچھ یہاں پہ ریزنز بھی بتائے جا رہے ہیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے. جب فرسٹ ٹائم میں نے اس آیت کو پڑھا تھا تو تھوڑی حیرت ہوئی تھی، اسے خوشخبری کی کیا بات ہے؟ خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. یس کیونکہ دیکھیے کہ یہ لوگ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے کے اپنا فیوچر سیکیور کر لیں گے، اپنے گھر والوں کا فیوچر سیکیور کر لیں گے، اپنے گھر والوں کو سیٹ کر دیں گے اور خود بھی بہت سیٹ ہو جائیں گے. تو فیوچر کی فکر میں تو انسان سارے گھپلے کرتا ہے دنیا میں، نہ اس کو حلال کی تمیز، نہ اس کو حرام کی تمیز، اور نہ کمائی کی تمیز کہ کس طریقے سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے نا، تو اس کو اس کے فیوچر کی خوشخبری دے دو کہ ایسے منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ دردناک عذاب کی خوشخبری دی؟ کیا ریزن ہے؟ آگے ساری آیتیں جو آ رہی ہیں وہ سب ریزنز بتائے جا رہے ہیں. کنہیں ملے گا یہ دردناک عذاب؟ یہ وہ منافق الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. پہلا جرم کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، کافروں کو دوست، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. دیکھیے ذرا پتہ آپ کو ایسی آیتوں پر ہی جو میں نے اپنی یعنی کہ فرینڈشپ میں نے جو ختم کی یا کم کی نا، یہ ایسی آیتوں کی وجہ سے. اکثریت لوگ آپ کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اکثریت جو آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اب چونکہ ارے میں اپنے دوست کی بات مان نہیں سکتی ہوں، میں تو ارے اس کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں، تو ان کے طور طریقے پر چلنا پڑتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلا جرم، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسا کہا. پہلا جرم ان کا یا پہلی حرکت ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. آج بھی دیکھیے کتنے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات سننے ملتی ہے، ارے جو توحید پرست انسان ہے، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو امت محمد یا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں توحید پرست کو ان سے اچھے تو کافر ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، توحید پرست کو چھوڑ کر کسی اور کو، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں، منافق ہیں یہ لوگ. اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. کیا تم چاہتے ہو ان کے پاس سے عزت؟ تو پھر یہ سن رکھو کہ بے شک تمام عزت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے نا یہ بات. ارے وہ پی ایم ہے، وہ منسٹر ہے، میں اس کی مطلب اس کی مجھ سے دوستی ہے، میں اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا تو کیا میری ویلیو بنے گی، میری کیا عزت رہے گی سماج میں، تمہیں کیا پتا.
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले तुम इज्जत तलाश करने जाते हो उनके पास, इसलिए तुम उनसे दोस्ती करते हो। तो ये सुन रखो कि तमाम इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। तो क्या पता चला कि हमारा पूरा यकीन और अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह इज्जत तमाम तेरे हाथ में, तू जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे। जब हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में तमाम इज्जत है, तो हमें तमाम इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगनी चाहिए। इंसान कोई किसी को इज्जत नहीं देता है, वो सिर्फ एक यानी कि एक अपने आप में जो है एक कहते हैं ना कि मतलब परस्त लोग जो होते हैं या किसी को खुश करने की जो है वो कोशिश में रहते हैं अपना काम निकालने के लिए। आज यही हाल है मुसलमानों का। क्यों वो हिंदुओं से या नाम गैर मुस्लिमों से दोस्ती करते हैं? ताकि समाज में हमारा भी कुछ बोलबाला हो। आज पॉलिटिक्स में आप देखिए जरा, क्या आज समाज में हमारे पॉलिटिक्स जो भी यानी इस तरीके से फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस आयत की रोशनी में जो भी मंजर आज पॉलिटिक्स का होता है वो देखते हैं हम, कैसे अपना मतलब निकालने के लिए लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। चलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं आयत नंबर 140 में कि वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताब। फिर ये मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पर जो है देखिए आप कि मुनाफिकों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो काफिर कह रहे, सब कुछ जानते बूझते जो है वो इस तरीके की हरकत करते थे। अब उनका मिजाज ऐसा हुआ करता था, इनकी हरकत ऐसी हुआ करती थी कि काफिरों से जो है वो दोस्ती रखते, उनको खुश करते और उनके तौर तरीके अपनाते, और यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं करते कि कहीं हमारी इस अमल से, हमारी इस हरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज ना हो जाए। लेकिन एक बंदे मोमिन क्या होता है, वो पहली प्रियोरिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला को देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज्यादा जो है वो प्रियोरिटी देता है कि मैं कुछ करूं, मेरा रब नाराज नहीं होना चाहिए। तो हम अपने आप को टटोले, हम अपने आप को जांचें। देखिए होता क्या है, दोस्ती ठीक है, आप फ्रेंडशिप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना किया गया ऐसा वैसा ना। खाने पीने में भी आप जो है वो खा पी सकते हो उनके साथ, लेकिन एहतियात क्या करना है आपको, दिली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। नाउज़ बिल्लाह इतना ना हो कि आपके बीच में इतनी आपस में मोहब्बत हो गई है कि अपनी बच्चियां उनको दे रहे हैं, उनकी बच्चियां लेके आ रहे हैं, अलवी दोस्ती हो गई है, उनके तौर तरीके आप अपना रहे हो, यानी इतनी भी दोस्ती ना हो कि आपको अपना दीन कठिन लगने लगे, आपको अपना दिन मुश्किल लगने लगे, क्योंकि उनके दिन सारे एंटरटेनमेंट वाले हैं और हमारा दिन बहुत सादा सा है, सीधा है, कोई इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। दुनिया परस्त लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो वो उनके ही तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्ती हद तक हो, आप बिल्कुल उनसे दिली दोस्ती मत करिए कि आप उनके बगैर रह नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल उनके तौर तरीकों को अपना रहे हैं इसलिए कि वो उनको नाराज नहीं कर सकते। इस तरीके की दोस्ती से मना किया गया है। फिर आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताबी, और दर हकीकत उसने नाजिल किया तुम पर किताब में। किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया कि जब सुनो तुम अल्लाह की आयतें, युकफरु बिहा, और वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब इनकार कर रहे हैं अल्लाह की आयतों का और वो सब मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह की आयतों का। फिर नहीं तुम बैठो माहुम हत्ता यखूदू फी हदीस गैरिही, यहाँ तक के वो सब, यहाँ तक के फिर नहीं तुम बैठो उनके साथ यहाँ तक के वो सब बिजी हो जाए उसके अलावा किसी और दूसरी बात में। देखिए ये अदब सिखाया जा रहा है, ये अदब सिखाया जा रहा है कि आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं, अगर कुछ ऐसी मिस गैदरिंग हो रही है कि जहां पर अल्लाह रसूल और अल्लाह की किताब की बातें छोड़कर दूसरी कोई बातें हो रही हैं, लेकिन आप अगर अल्लाह की बातें कर रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रही हैं, दीन की कुछ बातें कर रही हैं और वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहे हैं और इनकार कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ होता है क्या, कैसा दीन है तुम्हारा, ऐसा है वैसा है। और देखिए कि हम तो बोल ही नहीं सकते कि मुनाफिक या काफिरों की महफिल में होता है ऐसा। नाउज़ बिल्लाह, ये तो आजकल मुसलमानों की महफिल में भी हो रहा है। अच्छा, कोई बोल बोल के मजाक नहीं उड़ाता है। आप देखिए, आप अल्लाह के घर में बैठी हैं और वहां पर आप अल्लाह के
साथ किसी और को शरीक कर रही हैं, किसी और को शरीक किया जा रहा है, वहां पर अल्लाह के साथ जो है वो शिर्क किया जा रहा है, मुशरिकों की, बुजुर्गों की, वलियों की बड़ाई मारी जा रही है, तो भी तो दीन का मजाक हुआ ना, सख्ती से मना किया गया। देखिए अब आपको पता चल गया आपको ऐसे महफिलों में नहीं बैठना है। हाँ, लेकिन इसके अलावा माहौल अगर चेंज हो गया है, इसके अलावा अगर वो दूसरी बातों में वो बिजी हो गए हैं, यानी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाना ये भी हुआ कि जिस घर में अल्लाह सुब्हान ताला का बोलबाला होना चाहिए, अल्लाह सुब्हान ताला का कलीमा बुलंद होना चाहिए, उस घर में हम नाउजुबिल्लाह किसी और का कलीमा बुलंद कर रहे हैं। इस तरीके की बातें मजीद बताया जा रहा है। इन्नकुम, क्यों सख्ती से मना किया जा रहा है? इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो इन्नकुम इज़ मिस्लुहुम। देखिए डांट कितनी बड़ी है ये। अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम इस सूरत में, इन दिस कंडीशन, तुम उनके जैसे ही हो जाओगे। यस, मुनाफिका सिफत लोग पता है आपको कैसे थे? माहौल का असर लेने वाले, जैसा देश वैसा भेष। बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद रखें। जैसे लोग होते उन्हीं में घुल मिल जाते, भाई जो ये कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, हम इनको नाराज नहीं कर सकते, हमें इनके जैसा ही करना है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे तुम उनके साथ बैठोगे तो तुम उनके जैसे ही हो जाओगे। ठीक है, मजीद क्या फरमाया जा रहा है? इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीया। अल्लाहु अकबर, बहुत सख्त बात है ये। बेशक अल्लाह ताला जो है जमा करने वाला है मुनाफिकों को और काफिरों को इकट्ठा जहन्नम में। देखिए जरा कौन थे मुनाफिक? बार बार आप जरा नजर तो दौड़ाइए, अपनी सोच को लेकर तो जाइए वहां तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने वाले, पांचों वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि उनको और काफिरों को दोनों को इकट्ठा करके जहन्नम में डालूंगा मैं। एक जगह ही दोनों को डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका मिशन एक था, इनका मकसद एक था, और वो मकसद क्या था? दीन को और दीनदारों को और दीन के राह में काम करने वालों को नुकसान पहुंचाना। चूंकि मकसद एक था तो फिर वही इनको रिवॉर्ड भी तो एक जैसे ही मिलेगा कि नहीं? ठीक है, मजीद क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? अब और ही बताया जा रहा है कि क्यों अल्लाह सुब्हान ताला को इतना गुस्सा आ रहा है इन पर, और क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ये कहा कि इनको इकट्ठा डाला जाएगा जहन्नम में। क्यों? वो इसलिए इन्नल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, बेशक ये लोग जो है वो इंतजार में रहते थे तुम्हारे बारे में। किस बात पे? फ़इन कान लकुम फतहुम मिनल्लाहि, फिर अगर होता तुम्हारे लिए कोई फतेह, कोई सक्सेस अल्लाह की तरफ से, क़ालू अलम नकुम माअकुम, तो क्या कहते थे? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? झूठी मोहब्बत जो है दिखाते थे। हाँ ठीक है, मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं व इन कान लिल काफिरीन नसीबुम, और इनकाना, और अगर होता काफिरों के लिए कोई हिस्सा, कोई जीत अगर काफिरों को मिल जाती तो क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम, तो क्या कहते थे क्या नहीं, देखो हम गालिब आए थे तुम पर। मतलब हम थे तो मुसलमानों के साथ, लेकिन जब मुसलमान तुम्हारे ऊपर वार करने आ रहे थे ना, वनमनाकुम मिनल मुमिनीना, अरे हमने रोक रखा था तुमसे उन ईमान वालों को, उन मुसलमानों को, नहीं हमारा ही भाई है, इसको मारना नहीं है। देखिए दो गलापना। क्या बोलते थे कि जब आप, यानी हम तो थे मुसलमानों के साथ, लेकिन जब हमारा ही मुसलमान भाई तुम्हारे पर हमला करने आ रहा था तो उसके सामने मैं आके खड़ा हो गया था, नहीं इसको मत मारो करके, मैंने रोका था उसको। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि फल्लाहु यहकुमु बैनकुम, फिर अल्लाह वो फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन कि वाकई तुम ईमान वालों के साथ थे या काफिरों के साथ। वलै यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और नहीं बनाया है अल्लाह ने काफिरों के लिए ईमान वालों पर कोई रास्ता, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई भी एक्सक्यूज ईमान वालों के लिए जो नहीं छोड़ा। पूरी खुली परमिशन मिल गई थी फिर ऐसे लोगों को मारने की। ऐसा कोई रास्ता अल्लाह सुब्हान ताला ने नहीं छोड़ा कि काफिर ईमान वालों के साथ इस तरीके कुछ मामला करें। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि दो गलापना।
मजीद और इनकी क्वालिटीज बयान की जा रही। देखिए चलिए, होता क्या था कि देखिए उस वक्त, उस दौर में मुनाफिकत 2-3 जो है बातों से वाज़ेह हो जाया करती थी। अगरचा कोई भी जिहाद पर नहीं जाता था, उस पर मुनाफिकत का टैग लग जाता था, और अगर कोई नमाज बाजमात नहीं पढ़ता था, उस पर भी मुनाफिकत का टैग लग जाता था। अब क्या करें? अब ये लोग बोलते थे हाय अब हम नहीं जाएंगे तो हमको सब मुनाफिक पुकारेंगे, कैसे भी करके दिल मार के बगैर अपनी मर्जी के, और इस तरीके से जाते थे नमाज में। अच्छा जाते थे तो क्या करते थे? आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक मुनाफिक वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, और वो खुद को ही धोखा दे रहे थे। किस तरीके से? वह इज़ा क़ामू, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे तो कैसे खड़े होते थे? सुस्ती से। नंबर 1 की क्वालिटीज काउंट करिए। नमाज तो पढ़ते थे, देखिए जरा आप, उस वक्त बाज जमात नमाज पढ़ते थे, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें मुनाफिक का टाइटल दे दिया। आज के मुसलमानों को क्या कहा जाएगा? देखिए इतनी बातें, नमाज जरूर पढ़ते थे वो, इतनी बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 पढ़ते थे नमाज, सुस्ती से पढ़ते थे। नंबर 2 युराऊन अन्नास, और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते थे। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नहीं वो जिक्र करते थे अल्लाह का मगर थोड़ा। ये क्या बात हो गई? बहुत छोटी छोटी सूरत पढ़ी और बस दम 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 नमाज पढ़े और बस गए, ऐसे इस तरीके से ठहराव नहीं हुआ करता था नमाज में। आज देखिए कि अक्सरियत मुसलमान की इस बुराई में फंसी हुई है। मैं अपने आप को जांचूं, आप अपने आप को जांचें कि नाउज़ुबिल्लाह कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं है। यानी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की बात है कि अगर मेरे अंदर, आपके अंदर ये बात है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करिए, और वो दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक, बहुत मांगा करो। हर इंसान के दिल में जो है मुनाफिकत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो बिल्कुल अपने आप को पाक नहीं समझती इस चीज से। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मुनाफिकत है ही। वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पर जाहिर नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मजीद इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? चलिए, ये तो आउटसाइडर, यानी जाहिरी इनकी जो सिफत थी वो दिखाई गई, वो बताई गई, जाहिरी ये लोग ऐसा किया करते थे। अच्छा ठीक है, इंटरनली दिल की हालत क्या हुआ करती थी? मुज़र्रबीन बैन ज़ालिक, दिल की उनकी कैफियत कैसी थी? डगमगाने वाली। वो कैसे? ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, ना इनकी तरफ हुआ करते थे कंप्लीटली, ना उनकी तरफ हुआ करते थे कंप्लीटली। ये इनकी और उनके मतलब क्या है? न ईमान वालों की तरफ कंप्लीटली झुके हुए होते थे, और ना ही कंप्लीटली काफिरों की तरफ ये हुआ करते थे। देखिए जरा, मेरे दिल की कैफियत ऐसी तो नहीं है, मैं कंप्लीटली ईमान वालों का साथ देती हूँ, या फिर मैं थोड़ा बहुत जो है वो काफिरों का भी साथ देती हूँ। जांचिए अपने आप को, किस तरीके का मेरा मामला है। जब मुझे दुनिया में फायदा होता है तो मैं दीन पर छोड़ देती हूँ अमल करना, या फिर करती हूँ। इस तरीके की बातें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजीद क्या फरमा रहे? वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जिसे गुमराही में छोड़ दे अल्लाह, फिर हरगिज नहीं तुम पाओगे उसके लिए कोई रास्ता। देखिए जरा, दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कभी भी हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी जो है वो गुमराहों के रास्ते पर ना चलाए, वला दुआलीन, बल्कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐसी ऐसी आयतों में दुआ मांग लिया करो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से। मजीद क्या बताया जा रहा है? और आपको क्या लगता है कि मुनाफिकत की जो क्वालिटी है सडनली आ जाती है किसी के अंदर? नो। अब हम आगे रीजन देखेंगे। व्हाट्स द रीजन ऑफ मुनाफिक? मुनाफिकत की जो क्वालिटी होती है वो इंसान कब उसकी शुरुआत होती है? उसकी शुरुआत कब होती है? आयत नंबर आगे अब आप देखिए कि कुछ उसके सिम्टम्स कैसे हमारे अंदर आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और उसके साथ साथ अल्लाह का एहसान मानिए कि उसका इलाज भी बता दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उससे बचने का रास्ता भी बता दिया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल मुमिनीन। देखिए,
बता दिया गया, ऐ ईमान वालों नहीं तुम बनाओ काफिरों को दोस्त ईमान वालों को छोड़कर। ताकीद बार बार की जा रही है। तो सबसे बड़ा रीजन मुनाफिकत की शुरुआत कब होती है? जब हम दीनदारों को, ईमान वालों को छोड़कर मुनाफिकों को, काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। वहीं से नुक्ता आगाज, स्टार्टिंग जो है मुनाफिकत की शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने आप को जांचिए, अगर अभी भी आप गैर दीनदारों से, अभी भी आप काफिरों से दोस्ती करती हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर मुनाफिकत है अभी। तो टटोलिए अपने आप को, अपने दोस्तों को टटोलिए। मेरा साथ किन लोगों के साथ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन है कौन नहीं। जब आप यकीन करिए कि कहीं 100-200 की लिस्ट होगी ना, सारी खत्म होके कहीं 1-2 आपके पास बचेंगे। देख लीजिए, आप अगर करना चाहे तो कर लीजिए। जब अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें सारे सिम्टम्स बता दिए, उनकी क्वालिटीज बता दी, उनसे बचने का रास्ता भी इंशाल्लाह देखते हैं हम। तो एक यही है कि ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, ठीक है। अब देखिए मजीद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं आयत के अगले हिस्से में 144 में, अतुरिदूना, क्या तुम ये चाहते हो, अंतजालु लिल्लाहि अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम बना लो अल्लाह को, ताकि वो सब, हाँ तुम सब बना लो जो है अल्लाह को खुली दलील। ये क्या बात हो गई? यानी कि ये अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे और आपको रोक दिया, हर ईमान वाले को रोक दिया, ठीक है। जो भी आयतें पढ़ेगा हर उसको जो है ये या अय्युहल्लज़ीना ला तत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़ू, इट्स डोंट, नहीं बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाओ। जब बोल दिया अल्लाह सुब्हान ताला ने, मेरे पास, आपके पास ये मैसेज आ गया, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला मजीद ये फरमा रहे, जब मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो उनसे दोस्ती? अच्छा तो तुम्हारा ये इरादा है क्या कि तुम बना लो अल्लाह को तुम पर जो है यानी खुली दलील, यानी तुम कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला को जो है ये एक्सक्यूज पेश करो कि अल्लाह मुझे पता नहीं था, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला ने सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए तुम्हें, और बिल्कुल यानी कि पूरी हुज्जत अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो तुम पर तमाम कर दी, पूरे तुमको जो है वो दलील दे दी, अल्लाह सुब्हान ताला ने सारी बात को क्लियर कर दिया। उसके बावजूद भी जो है वो हुज्जत चाहते हो तुम कि नहीं अल्लाह ताला मुझे तो नहीं पता था, अब मैं क्या करूं, इनके साथ साथ मैं भी तो यहाँ जहन्नम में आ गई। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा वहां पर, नथिंग। तो यहाँ पर जब रोका जा रहा है तो रुक जाए, मत करिए ऐसे लोगों से दोस्ती। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं है कि तुम भी मुनाफिकों के साथ, उनके साथ साथ चले जाओ। कहाँ पर? आयत नंबर 145 में बताया जा रहा है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। देखिए जरा, बेशक मुनाफिक जो है वो आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। देखिए जरा, निचले दर्जे में होंगे। देखिए ये दरा का और दराजा वो था डिफरेंट थिंग। दराजा जो यूज किया जाता है वो जो ऊपर की तरफ चढ़ाई इंसान चढ़ता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर की तरफ स्टेजेस उसको मिलते हैं। और दरा का क्या है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सबसे। देखिए आग जब सुलगाई जाती है तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ लगती है उसकी? आप एक ड्रम में आग सुलगाइए और उसके बाद देखिए, महसूस करिए कि उसकी जो हीटिंग है टॉप पर लगेगी, मिड पर लगेगी या सबसे नीचे लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वी अंडरस्टैंड कि सबसे नीचे जो है बहुत ज्यादा जो है उसकी हीटिंग फील होगी। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। क्यों? आपने कभी सोचा कि इतनी सख्त सजा क्यों इनके लिए? इतनी सख्त सजा तो काफिरों को भी नहीं अल्लाह ताला दे रहे। इसलिए कि ये लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अल्लाह के और उसके रसूल के दीन को जो है वो क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, जानबूझकर जो है वो लोगों को परेशान करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला वही फरमा रहे हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी खता की है तो डेफिनेटली इनकी सजा भी बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी होगी। और ये भी सुन लो, वलंग तजिद लहू नसीरा, अल्लाहु अकबर, लहुम नसीरा। और डेफिनेटली तुम जो बिल्कुल पाओगे नहीं उनके लिए कोई मददगार। कितना खौफ आता है, कोई खौफ पता है आपको? और एक जहन्नम जो तैयार की गई हाविया, तीसरे सिपारे में इंशाल्लाह आप पढ़ोगे, हाविया, उसमें किसको डाला जाएगा? ख्वाहिश परस्त को।
जो अल्लाह के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर नहीं चलता है, अपने ख्वाहिशात के दीन पर चलता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हाविया नामी जहन्नम में डालेंगे। मुनाफिक का सिफत इंसान भी ऐसी होता है, वो अपने ख्वाहिशात के दीन को फॉलो करता है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी उसके लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है इतनी बातें सुनकर मेरे बंदे बहुत डर गए हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत है, एक्सेप्शन इज देयर। बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ते रखे हैं, और अगर तुम चाहते हो इस हाविया से बचना, ये असफला मिनन नार से बचना चाहते हो, सबसे निचले दर्जे की आग से बचना चाहते हो, करने के 4 काम कर लो। यानी बचने के रास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो लिखे हैं यहाँ पर 4 काम, ओनली 4 थिंग्स। और वो क्या है? इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह। 4 काम। नंबर 1, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली। देखिए जरा, पास्ट टेंस में लिया जा रहा है, जिन्होंने तौबा कर ली, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कोई बात नहीं, इससे पहले बहुत तुमने दीन को नुकसान पहुंचा दिया, बहुत तुमने मुझे नाराज कर दिया, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तौबा करके पलट आओ मेरे पास, मेरे सामने पलट आओ। उसके बाद क्या करो? व अफ़लहू, अपनी हालत को सुधार लो। जो गलतियां की है उस पर तुम शर्मिंदा हो गए हो ना, वैसा कुछ नहीं करना है तुम्हें जो पहले कर। ऐसा नहीं तौबा कर लिया मैं फिर वही काम करूं, फिर तौबा करूं, फिर काम कर लूं, फिर तौबा करूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी हालत को सुधार लो, दीन में लोगों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, अल्लाह के साथ शिर्क करना छोड़ दो, ये दोगलापना छोड़ दो, और अल्लाह के साथ दिल लगा लो पूरी तरीके से। नंबर 3, और मजबूती से थाम लो अल्लाह को। अल्लाह को मजबूती से सामने का मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब में जो भी अहकामात हमें दिए हैं उसको कंप्लीटली उसको फॉलो करो, कंप्लीटली उस पर अमल करने लगो। एंड नंबर 4 इज व अखलफू दीनहु लिल्लाह, और खालिस कर लो दीन को अल्लाह के लिए। यानी तुम्हारा जीना मरना, तुम्हारी हर इबादत, तुम्हारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ उसमें इखलास हो, यानी अल्लाह की रजा के लिए हो। बहुत खूबसूरत नुक्ता है ये। मेरा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो, मेरे हर बात, मेरी इबादत, हर चीज मेरी जो है वो अल्लाह के लिए मखसूस हो। देखिए, जिस अमल में इखलास नहीं होगा वो वैसे भी काबिल कबूल नहीं है। तो कोशिश करें अपने काम में, अपने अमल में, अपने इबादत में इखलास लाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ठीक है। नाउ अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ठीक है करने के काम करो, फौलाइका मअल मोमिनीन, फिर तुम ईमान वालों के साथ हो जाओगे। देखिए जरा, जांचिए अपने आप को, इसमें से कौन सा काम है जो मैंने अभी नहीं किया है, कोशिश करें उसको करने की। और ये 4 जो बातें निफाक से बचने का रास्ता हमें दिया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जीते जी हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको समझने की तौफीक दी, ताकि हम जो है वो दरकिल अस्फलिल मिनन नार में ना जाएं इंशाअल्लाह। तो ये जो है बचने का रास्ता जो दिया गया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं बस मुनाफिकत को छोड़कर ईमान की तरफ आ जाओ। इस तरीके से मुनाफिकत को छोड़ो और ईमान की तरफ आ जाओ। ठीक है। अभी देखिए कि जब इतने खूबसूरत ये दीन हमारा कितना खूबसूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नेकी पर 10 नेकी का जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देते हैं। आपने एक अच्छा काम किया, एक नेक अमल किया, 10 नेकियां लिख दी गई। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कि कितना जो है वो उसका मामला किस तरीके का है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक गुनाह पर जो है हम गुनाह करते हैं तो उस पर एक ही हमारी सजा लिखी जाती है, एक गुनाह के बदले में एक गुनाह लिखा जाता है। इसलिए देखिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि हाँ वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, कि बहुत जल्द देगा अल्लाह ईमान वालों को अजर बड़ा। यही अजर बड़ा है, आप एक नेकी करती हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 उसका अजर लिख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई अपने बंदों पर बहुत शफकत करता है, बहुत रहम करता है। ये आखिरी आयत यकीन करिए इतनी खूबसूरत लगती है अल्लाह और उसके बंदों के नाते से। मा यफलुल्लाहु, अल्लाह तआला बोल रहे क्या करेगा अल्लाह, बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देकर। लेकिन शर्त क्या है?
अल्लाह सुब्हान ताला को बिल्कुल पसंद नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदे को आजाब दें या अपने बंदे को जो है वो तकलीफ में रखे। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। यकीन करिए सूरह निसा की 147 आयत में तो ऐसा लगता है वाकई अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप ये देखिए कि कोई माँ अपने बच्चे को उठाकर आग में फेंकती है क्या? कभी देखे आपने इतनी बेरहम माँ कि उठा के आग में फेंक दे अपने बच्चे को? तो जिस रब ने हमें पैदा किया है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो अल्लाह सुब्हान ताला हमें आग में डाल दे? नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला खुद फरमा रहे क्या करूंगा मैं तुम्हें आजाब देके, बस दो काम करते रहो, सॉरी एक काम कर लो और एक काम मत करो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र करते रहोगे और मुझ पर ईमान लाते रहोगे, ये दो काम का बहुत एहतियात करना है हमें। एक तो मेरा शुक्र करते रहो और मुझ पर ईमान लाते रहो। शुक्र, जो भी मैंने तुम्हें दिया है उसका पूरा क्रेडिट मुझे दो, इधर उधर किसी के दर पे जाके माथा टेक के उनको क्रेडिट मत दो। और देखिए कि हम जो है नियामत का हक जो है अल्लाह सुब्हान ताला हमें जो भी नियामत अता करते हैं उसका हक हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्र करके। जितना ज्यादा आप शुक्र करोगे, शुक्र करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि बंदा जब शुक्र करता है तो उसकी नियामतों को सेव कर दिया जाता है, उसकी नियामतों को जो है अल्लाह सुब्हान ताला बरकरार रखते हैं, मजीद इजाफा करते हैं। जब बंदा किसी नियामत पर एक दफा, आप देखिए आपने कभी गौर किया कि जब भी हमारी क्लास फिनिश होती है 3 दफा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे भी कोई सीक्रेट है। तो क्या है वो? पहला दफा तो जब हम पहली दफा किसी चीज के लिए हम शुक्र अदा करते हैं तो जू का तू कि अल्लाह सुब्हान ताला ये वक्त तेरे रास्ते में लगा, तेरा शुक्र है, ठीक है चलिए। दोबारा जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला उस नियामत में मजीद इजाफा कर देते हैं हमारे लिए। अच्छा, जब हम तीसरी दफा शुक्र अदा करते हैं तो पिछली भी नियामतों को अल्लाह सुब्हान ताला सेव कर देते हैं। बताइए जरा कितना, विद इन ए सेकेंड, कुछ टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन एकदम कौल ही नहीं, जबान से नहीं, बल्कि दिल से आपको अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे बस मेरा शुक्र करते रहो, मुझ पर ईमान रखते रहो। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और है अल्लाह बहुत कदरदान और बहुत जानता है। तुम उसकी शुक्रगुजारी करते रहो, वो तुम्हारी कदर करते रहेगा। आज मुसलमान बेकदरा क्यों हो गया है? आज मुसलमान की कदर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो रब का बहुत नाशुक्रा हो गया है। आज भी अल्लाह सुब्हान ताला मौके दे रहे हैं, चांसेस दे रहे हैं, इतने चांसेस मुसलमानों को मिल रहे हैं कि तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, तुम्हारी क्या वैल्यू मैं दुनिया वालों से करवाऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको लोगों की नजर में जो है वो अच्छा रखें या लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत डालें, तो लोगों को खुश करने वाले काम मत करिए, आप रब को राजी करिए, अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करते रहिए और उसकी किताब पर और सुन्नत पर अमल करते रहिए। वो ये है ना, आमन तुम, ईमान लाते रहो। बोलोगे हम क्या ईमान वाले नहीं है क्या बाबा, हम तो मुसलमान है, क्या ईमान वाले नहीं? तो सोचिए जरा, फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने आयतें क्यों उतारी ऐसी? यानी अल्लाह सुब्हान ताला को बोल बचन वाला ईमान नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला को सिर्फ बोल कर मैं बाबा बहुत ईमान वाली हूँ, बहुत नहीं, अमलन करके दिखाइए। ये मुनाफिकों की यही सिफत थी कि वो बोल बचन वाले ईमान वाले थे, बोल कर आमन्ना बिल्लाही बोलते थे, अमली तौर पर बहुत कंप्लीटली वो नील थे, एकदम बिल्कुल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में काम करते थे। देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे तुम मेरा शुक्र करके तो देखो, मैं इतनी कदर करूंगा तुम्हारी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। ये डेफिनेटली ऐसे ही होता है, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला बहुत नियामतें हम अता करते हैं कि हम उस तक पहुंच भी नहीं पाते, उसको सोच भी नहीं पाते। तो इंशाल्लाह बार बार वो दुआ पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक, वाह मेरे दिल को तू निफाक के मर्ज से पाक कर दे इंशाल्लाह। वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔